Good morning to one and all. I am audible. In the last lecture, we talk about the principle and introductory part of the particular gas chromatography. Today, we have to talk about that particular GLC, or say you can say the GC. We are most popular with the GLC, gas liquid chromatography. As you should have to remember, most popular amongst these particular two GC technique, the GLC we are popularly using. Okay, for this GLC, we have to see the basic component of this particularly GLC, or say you can say the GC, gas chromatography. Just I am sharing the screen. Is it visible? Is it visible? This is the diagram provided in your notes that I am Yes, sir. taken. Okay. See, in the basic components of the GLC, as you know, this is a gas chromatography. The first very much important component of this particular chromatography technique is nothing but a carrier gas. What should be there? There should be the carrier gas. Carrier gas, or you can say it is a mobile phase. Gas क्या है यहाँ पे? Mobile phase है, right? Then pressure regulator and flow control. अब पता है आपको जब गैस है, gas is involved there at that time, we have to control that gas ना, flow of the gas, then their pressure. तो वहां पे flow control के लिए वो pressure regulator and the flow control device is there next to the carrier gas, or say you can say the gas cylinder के बाजू में क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? You can see over here it is an that particular pressure controller, pressure god or flow controller is there. Then sample injection system is there. Okay, then column. अभी आपको पता है कि सैंपल इंजेक्शन चेम्बर है, उसके अंदर कॉलम है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको, और उसको आप डॉटेड लाइन नजर आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, एक दो तीन है, T1 T2 T3, इसको तीनों को क्या किया है कि थर्मोस्टेट ओवन में रखा है. थर्मोस्टेटेड ओवन इज द नेक्स्ट पार्ट. ओके, T1 T2 T3 ये क्या है? थर्मिस्टर है में, क्योंकि एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए थर्मोस्टेटेड ओवन इज देयर. देन द डिटेक्टर इज देयर. यहाँ से ये डिटेक्टर के लिए जाएगा, डिटेक्टर पे आपको सिग्नल मिलेगा, उसको एम्पलीफाई करेंगे, और फिर आपको क्या मिलने वाला है? रिकॉर्डर, रिकॉर्डर के ऊपर पीक मिलने वाला है. This is the just you can say the block diagram or say schematic diagram of the GLC or say GC. Simply the GC or say GLC you can say anyway, gas chromatography or say gas liquid chromatography. ये 7 कंपोनेंट्स है. द डिटेल ऑफ दिस वी विल सी वन बाय वन. अभी कैरियर गैस क्या है? इट इज इन मोबाइल फेज. अभी ये क्या करने वाली है? दैट विल कैरीज द सैंपल. कहां पे? ऑन टू द कॉलम, कलेक्टिंग इट्स वेपर्स फ्रॉम द प्री हीटेड चेम्बर. अभी जो आपका सैंपल है उसको क्या करने वाले हैं? हम वेपराइज करने वाले हैं, राइट? और वो जो कुछ आयनिक फॉर्म में आने वाला सैंपल है उसको कैरी कौन करने वाला है? कैरियर गैस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड. गैस कैसे लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो कुछ भी आपका सैंपल है या सॉलिड है उसका क्या करने वाला है? मूव करने वाला है. then requirement to be fulfilled by the carrier gas, it should be inert. पहली उसका क्या चाहिए? inert चाहिए. should reacts with the sample and the liquid stationary phase. Then readily available in POM form at an inexpensive rate. ओके, इट इज एन वेट है, ये रेट है, इनएक्सपेंसिव रेट के ऊपर मिलना चाहिए. मतलब उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. आप दो पॉइंट कर सकते हैं इसको. इट शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द प्योर फॉर्म, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव. एज में दैट पॉइंट विल बी इन योर हैंड, यू कैन राइट योर ऑन योर ओन. ओके, यहाँ पे कोई लिमिटेशन है नहीं. देन detector should be able to identify and estimate the solid based on its ability to differentiate between the carrier gas and carrier gas with the solid. अभी ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि सेपरेटली कैरियर गैस को भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना चाहिए. along with there should be the differentiation between sample with the carrier gas and separately pure gas. And then pure gases like the hydrogen, helium, nitrogen, argon, carbon dioxide are used as a carrier gas.
सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेशर रेगुलेटर एंड द फ्लो कंट्रोल। अभी जो कैरियर गैस जो सिलेंडर में है उसके बाजू में ही प्रेशर कंट्रोलर, प्रेशर गॉग एंड फ्लो कंट्रोलर इज अटैच। उसे वॉल भी कहा जाता है, गॉग भी कहा जाता है आहन में। इट रेगुलेट द प्रेशर एंड द फ्लो रेट ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कि पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में कितना वॉल्यूम चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या अटैच करते हैं, प्रेशर रेगुलेटर एंड that particular flow controller is there. It has regulatory mechanism for change in the flow rate. आपको जैसा चाहिए फ्लो रेट उसको एडजस्ट करने को आना चाहिए। यहाँ पे that typically pressure of the 10 to 50 SPA and flow rate of the 20 to 50 cm³ per minute are maintained. Then sample injection system. Then sample is injected by using the microsyringe into the injection port through the rubber septum for liquid sample. The sample port is just above the head of the column. आप देखेंगे कॉलम के ऊपर रहता है। The temperature of the sample port is maintained at about 50 degrees centigrade higher than the normal boiling point of the sample. The sample size varies from 0.01 to 10 microliter is there, not only liter. Microliter means very small amount of the sample is required to analyze. आ रहा है समझ में कि बहुत कम वॉल्यूम लगता है, बहुत कम सैंपल साइज है में। The for solid sample it can be melted or dissolved into suitable solvent, then it can be injected with the help of the microsyringe. For gaseous sample it can be introduced into the column by means of the special gas sample wall। हाँ, मतलब गैस को आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, लिक्विड को आप तो सिरिंज के थ्रू ये कर सकते हैं, सॉलिड रहेगा तो उसको मेल्ट करके लेने का या डिसॉल्व करके लेने का, देन यू कैन इंजेक्ट। कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन जीएलसी इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पहले क्या ध्यान में रखना है कि जीएलसी क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देन इट इज एन हार्ट, कॉलम इज अ वेरी मच एसेंशियल एंड अ वेरी मच इंपॉर्टेंट part as far as the gas chromatography is concerned. Are you getting that point कि सबसे important जो part रहेगा in the particular GLC that will be the column. It is a heart. It is responsible for separation and resolution of the sample components. It has 2 to 6 millimeter internal diameter and 1 to 20 meter long. ये आपको उसके डायमेंशंस दिए। दे आर यूजुअली कॉइल्ड फॉर कॉम्पैक्टनेस। जो कॉलम रहता है आप डायग्राम में देखे होंगे, इधर कॉइल दिखाया है। कॉइल इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब कॉम्पैक्टनेस के लिए। ओके, देन कॉम्पैक्टनेस बोले तो आप लंबे रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेट 20 सेंटीमीटर या दैट पर्टिकुलर मीटर का रखेंगे कॉलम, 1 से 20 मीटर का अगर कॉलम है तो साइज क्या हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट की, बहुत बड़ी हो जाएंगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इसको क्या किया है, उसका वर्लिंग किया है, उसका मतलब उसको कॉइल्ड किया है, सर्कुलर फॉर्म में रखा है, सो एज टू इट विल assembled in a one that particular chamber. The column are made by the glass or stainless steel. यहाँ पे make the correction, glass और stainless steel material से बनाए जाते हैं। Types of the column उस दिन हमने उसमें भी देखा था, capillary column और you can say the open tubular column, packed column. Capillary column is made up of the glass and a fused silica with the internal diameter 0.25 to 0.50 millimeter and length of the 25 to 50 meter. Their inner surface are coated with the thin layer of the liquid stationary phase. The diameter of the column is small compared to the packed column. Column is more efficient. There are two types of the column, wall coated open tubular and support coated open tubular column. इसको कहा जाता है WCOT, इसको कहा जाता है SCOT. ओके, ये दो टाइप है। कैपिलरी आपको कॉलम के ऊपर नोट्स लिखने को 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तब इतना मटेरियल उसमें आना चाहिए। Packed columns are made up of the glass and the metal tubes. They have 1 to 8 millimeter diameter and 2 to 20 meter length. They are placed in the coil form in the thermostat oven. They have 2000 to 3000 theoretical plates. It is more efficient than the capillary column. इससे कैपिलरी कॉलम से मोर एफिशिएंट है। थर्मोस्टेटेड ओवन कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए उसको यूज किया जाता है, ध्यान में रखना है। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन इज अबाउट 623 केल्विन। द राइजिंग टेम्परेचर कैन बी प्रोग्राम इन अ लिनियर मैनर। आप
बढ़ा हुआ टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, उधर नॉब वगैरह रहते हैं। इट विल बी रिस्पॉन्ड टू द सॉल्यूट। अभी डिटेक्टर का काम क्या है कि आया हुआ सॉल्यूट को रिस्पॉन्ड करना है आयन में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने वाला है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेक्टर के बताए, इट शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड पीपीएम और पीपीबी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब वेरी वेरी लेस अमाउंट it has to detect. It should have rapid response, it should have reproducible response। मतलब क्या कि पहले अगर अलग सिग्नल दिया तो उसने अगर स्टार्टिंग में एक सिग्नल दिया, जैसे कि समझो उसकी मैं बताता हूँ कि एक्स वाई जेड सैंपल, एक सैंपल है, लेट्स से कंसीडर एनी एलिमेंट इज देयर, तो एक एलिमेंट के लिए जो सिग्नल दिया वही सिग्नल उसने बार बार देना चाहिए, उसके अलावा दूसरा सिग्नल देना नहीं चाहिए। It should be able to differentiate between the carrier gas and solid. It should have the linear response. It should be stable to the temperature range. There are three types of the detectors are used. तो तीन टाइप के अलग अलग डिटेक्टर्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ओके, ये डिटेक्टर्स कौन से होते हैं that you have studied in the SY also। डिटेक्टर के टाइप्स है, PMT यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग है। ओके, बट हियर यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग इज दैट कि आपको डिटेक्टर पता नहीं। रिकॉर्डर का काम क्या है, आया हुआ डिटेक्टर से जो सिग्नल है वो एम्पलीफायर पे जाता है, एम्पलीफाई होता है और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ओके ओके, यू गॉट दिस पॉइंट पर्टिकुलरली कि उधर गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत सिंपल है। सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग थिंग इज दैट कि थोड़ा मटेरियल इसमें से छूटा हुआ है। तीन टाइप के जो डिटेक्टर है दैट आई विल शो यू। ओके, और एक वो WCOT आपके नोट्स पे मैंने लिख के दिया मगर यहाँ पे बताया नहीं, दैट आई एम शोइंग अगेन एंड डिस्कसिंग। WCOT एंड SCOT के बारे में जो है, दैट मटेरियल इज नॉट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। बराबर ना, नोट्स में उसके बारे में दिया है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। जस्ट अ मिनट। जो पार्ट छूटा है दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम द नोट्स। ओके, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। ये दो टाइप का एक्सप्लेनेशन, वॉल कोटेड ओपन टेबुलर एंड सुपर कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम, इसके बारे में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं था। इन WCOT कैपिलरी ट्यूब्स आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ द स्टेशनरी फेज। ओके, एंड इन द SCOT columns the inner surface of the capillary tube is lined with a thin film of the support material। वहाँ पे एग्जांपल दिया है, support material और sticking material nothing but a silite। Okay, the capillary column have the length of the say 100 to 500 meter, the theoretical plate in the range of the several 100 to 1000। ये कैपिलरी कॉलम के बारे में इन जनरल है। देन देयर आर डिटेक्टर जो है ये FID TCD ECD, प्लेन आयनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। डिटेक्टर्स के ऊपर भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन द एनी वन डिटेक्टर फ्रॉम दिस। ये तीन डिटेक्टर के टाइप है, फ्लेम आयनाइजेशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड electron, FID TCD and ECD। This is the part which is left from this particular slides। Okay, if you have any problem you can ask। Umar is there?